Hello student, today we will discuss on the lesson number 3 turning the tide. Tide means लहरें, लहर, ठीक है. Do you know the meaning of the word endangered? Endangered मतलब होता ख़त्म होने की कगार पर है, ठीक है. Let's start. Imagine yourself on a beach in Orissa in winter. Moonlight glistens and is reflected not of the sand or water but of the weight backs of 1,000 turtles. Each olive Reddle's turtle, 2 feet long and weighing about 50 kilograms, has dragged itself up the beach to dig a nest and lay eggs as all sea turtles do. Unlike other sea turtles, though Ridley's indulge in an annual ritual known as the Aribada, which means arrival in Spanish. Suppose in winter season you are in the beach of Orissa, okay, then in the moonlight you will see thousands of Ridley's turtles. रात के सपोज़ आप विंटर सीज़न में कहाँ हैं, उड़ीसा के बीच में, और रात के समय आप देखते हैं कि हज़ारों की संख्या में जो है समुद्र के किनारे ऑलिव रिडलेस टर्टल जो है ड्रैग कर रहे हैं, कुछ ड्रैगिंग टूवर्ड द बीच टू डिग नेस्ट एंड ले एग्स. वहाँ पे एग देने के लिए क्या कर रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं. दिस फेनोमिना ऑफ कमिंग टू बीच एंड लेइंग एग्स टू टर्टल इज़ नोन एज अरीबादा. इसको स्पेनिश में क्या बोलते हैं, अरीबादा बोलते हैं, ओके. Tens of thousands come ashore at the same time to lay their eggs. This amazing natural phenomenon may disappear one day unless we are able to do something about the hazards that threaten these turtles' very existence. Tens of thousands come ashore at the same time to lay their eggs. अगर हम कछुओं को बचाने के लिए कुछ नहीं करेंगे तो एक दिन शायद ये अमेजिंग और नेचुरल जो फेनोमिना है, एग देने वाला, कछुओं का जो एग देने वाला, वो हम नहीं देख पाएंगे. सी टर्टल्स आर मैजिकल एनिमल्स, ऑल द मोर मिस्टिफाइंग बिकॉज of our ignorance about them. They appear but briefly on land to lay eggs and spend the rest of their lives wandering the oceans. सी टर्टल्स एक मिस्टिफाइंग मीन्स रहस्यमय जीव है जिसके बारे में हम कम जानते हैं, क्योंकि वह अपने लाइफ का ज़्यादा समय सी में ही स्पेंड करते हैं और केवल अंडे देने ही बाहर आते हैं. एज हैचलिंग्स दे ड्रिफ्ट विथ ओशियनिक करेंट्स, समटाइम्स traversing the entire Pacific or Atlantic. When they become adults 10 to 15 years later, some species live up to the 50 years. They use the Earth magnetic field to find and lay their eggs on the same beach where they were born. अंडों से निकले बच्चे समुद्र की लहरों के जरिए समुद्र में पहुंच जाते हैं और वे पैसिफिक, कभी कभी पैसिफिक से अटलांटिक तक जर्नी कर लेते हैं, ठीक है. जब ये बच्चे 10 to 15 ईयर्स में एडल्ट हो जाते हैं तब ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए वापस उसी बीच में पहुंच जाते हैं जहां पर वो अंडे देने वहां पहुंच जाते हैं, उसी बीच में पहुंच जाते हैं जहां वे पैदा हुए थे. They have done this for millions of years, but today sea turtles are threatened by human activity. This includes the increasing pollution of the oceans. Millions of years मीन्स लाखों सालों से इस फेनोमिना को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है. कौन, कछुए. बट नाउ अडेज ह्यूमन एक्टिविटी और पोल्यूशन के कारण ये इंडेंजर्ड होते जा रहे हैं, खतरे में हैं. Electric lights on beaches confuse hatchling and prevents them from finding the ocean after they hatch. जनरली बच्चे रात में अंडे से निकलते हैं और वे चांद की रोशनी को फॉलो करते हुए ओशियन में जाते हैं, बट बीच, समुद्र के किनारे में लगे लाइट्स के कारण वे कंफ्यूज हो जाते हैं और ओशियन में नहीं जाते हैं. फिशिंग nets have killed hundreds of thousands of turtles worldwide. Sea turtles are air breathers and when they get accidentally caught in fishing nets they drown. ओके. दुनिया भर में मछली पकड़ने वाले जाल के कारण
हजारों कछुए मर जाते हैं क्योंकि कछुओं को सांस लेने के लिए ओशियन की सतह पर आना पड़ता है, लेकिन जाल में फंसने के कारण वे डूब जाते हैं। In Orissa, more than 1 lakh olive ridleys have been killed in trawl fishing nets in the last 10 years. Current efforts to create an alliance between fishermen and conservationists seem to offer some होप। उड़ीसा में ही पिछले साल 10 सालों में फिशिंग नेट्स के कारण लाखों ओलिव रिडलेस कछुए मर गए हैं। फिशरमैन एंड कंजर्वेटिव्स, जो पीपल हु एक्ट फॉर द प्रोटेक्शन, दोनों की पार्टनरशिप और तालमेल की वजह से इनके जो है ओलिव रिडली जो हैं वो बचाव की उनकी उम्मीदें दिख रही हैं। I saw my first olive ridleys turtles one night in Chennai. We had just started a student group to conserve turtles. We watched the female turtle come ashore, crawl up to a dry part of the beach, dig a 2 feet deep nest with her hand flippers, and lay 100 to 150 eggs. द राइटर जो है कार्तिक शंकर जो राइटर हैं उन्होंने वो कहते हैं आई सॉ फर्स्ट ऑलिव रिडल्स turtles one moon night in Chennai. The writer and some students form a group to conserve the sea turtles. They watch that female turtle come ashore, crawl up to a dry part of the beach, okay, and dig a 2 feet deep nest with her hind flippers and lay 100 to 150 eggs. तो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि राइटर ने इन लोगों ने स्टूडेंट्स का ग्रुप बना के उनको कंजर्व करने की कोशिश की, आप भी ऐसा कुछ काम कर सकते हैं। आप हो सके तो पेड़ों को बचाने के लिए ग्रुप बना सकते हैं। द हैचलिंग वुड इमर्ज अबाउट 2 months later, under the cover of darkness, make a swift dash for the sea, which they locate by the reflection of moonlight and starlight on the water. Now, nearly 20 years later, some of those hatchlings have hopefully reached adulthood. The group with which I saw my first olive riddles is still active. It has been joined by other organizations and they all work for the conservation of these fascinating marine animals. After 2 months, बच्चे जब अंडे से निकलते हैं, ठीक है, आफ्टर 2 months मूनलाइट और सनलाइट के रिफ्लेक्शन से सी वाटर में चले जाते हैं। राइटर कहते हैं कि जो उम्मीद है, जो हमने देखा था हैचलिंग जो समुद्र में हुई थी, समुद्र की ओर जब वो गए थे हैचलिंग के लिए कछुए, तो हमने उन्हें देखा था। आज वो एडल्ट हो गए होंगे और आज भी ज़िंदा होंगे, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। हमारे ग्रुप के साथ और भी ऑर्गेनाइजेशन जुड़ गए हैं और वे इन मरीन एनिमल्स के कंजर्वेशन के लिए अच्छा वर्क कर रहे हैं। However, more effort will be required to counter new threats on the horizon. लेकिन हमें मोर और मोर एफर्ट लगाने होंगे इन्हें इंडेंजर से बचाने के लिए, खतरे से बचाने के लिए कछुओं को, ठीक है। In Orissa, several ports have been planned along the coast, such as Dhamra. This is less than 10 kilometers from Gahir Matha, a major nesting site for the ridleys. Offshore oil exploration poses another threat. This coastal development, with attendant problems of pollution, lightning, and habitat loss due to changes in beach dynamics, are sure to cause even further decline in the population. उड़ीसा में कई सारे पोर्ट्स की प्लानिंग चल रही है, सच एज धामरा, जो कि गहीर माथा से 100 किलोमीटर्स दूर है। और गहीर माथा वे प्लेस है जहाँ रेडली टर्टल्स अंडे देने आते हैं। समुद्र के किनारे ऑयल एक्सप्लोरेशन से और ख़तरा बढ़ गया है इनके एग्जिस्टेंस पर। कोस्टल एरिया में डेवलपमेंट के कारण पोल्यूशन, लाइटनिंग एंड उनके नेस्टिंग एरिया का कम हो जाना इनकी पॉपुलेशन पर गंभीर प्रभाव डालेगा। किनकी पॉपुलेशन पर? कछुओं की पॉपुलेशन पर। नॉट ओनली विल सी टर्टल्स एंड अदर मरीन ऑर्गेनिजम्स सफ़र, बट so will the people who depend on marine resources for their livelihoods. Often such development
does not help local people as much as it is expected to do. इसके कारण न सिर्फ टर्टल बल्कि मरीन ऑर्गेनिजम्स पर भी दुष्प्रभाव पड़ेगा, ऑयल एक्सप्लोरेशन के कारण, लाइटनिंग के कारण, ठीक है। साथ ही उनके लाइफ पर भी प्रभाव पड़ेगा, इफ़ेक्ट पड़ेगा जिनकी लाइफ सी पर डिपेंड है, लाइक फिशरमैन एक्सेट्रा, ठीक है। Sea turtles are not only one of many species that are threatened by human activity. Will they survive into the next century? That depends on us. If you live near the coast, find out which species of sea turtles nest off those beaches and join in on the efforts to save them. They need all the help they can get. केवल सी टर्टल ही नहीं, ऐसे कई जीव हैं जिन पर खतरा मंडरा रहा है। क्या वे आने वाली सदियों में बचेंगे? दैट डिपेंड्स ऑन अस। अगर आप समुद्र के किनारे रहते हैं तो आप देखेंगे कौन सी स्पीसीज़ का कछुआ आता है और उसे बचाने के लिए कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा हो सके उतनी कोशिश करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इस चैप्टर से क्या सीखा कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड करेंगे। थैंक यू।